Hello learners, this time we will learn from the next chapter of real number of class 10. Okay, so we will start from this chapter, real numbers. So first of all, we just revise the category of real numbers. As we learned in previous class as class 9, we knows the category of real numbers. We just revise this. Okay, so category of real number, it means all the numbers in the number line are called real numbers. Okay, so real number basically divided into two parts. Okay, real number basically divided into two parts. The first part is rational and the second part is irrational. Rational numbers, irrational numbers. So basically real numbers are divided into two parts, rational and irrational. All the numbers which we have known basically, like natural numbers, whole numbers, integers, these all are rational numbers. Okay, so let me take natural numbers started from 1, 2, 3 and so on. Whole number started from 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, integers are basically two types. There are two kinds, positive integers and negative integers, and they both together called integers. Okay, so on the number line, as we know, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2 and so on. So these complete numbers on the number line on both sides are called integers. Okay, so this starting from 1, 2 and so on, 1, then 2, then 3, then 4 and so on. So this is called positive integer. Okay, so these are our positive integers. ये हमारे positive integers है, and these are called negative integers. So as we learn, natural numbers started from 1, 2, 3 and so on. These are called natural numbers, and these are rational numbers. Whole numbers starting from 1, 2, 3, 4 and so on. These are also called rational number. Integers are also called rational number, because if we call about the basic property of rational number. So the basic property of rational number is a number in the form of p by q. ऐसा कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्मेट में हो, इट मीन्स उसमें कुछ न्यूमरेटर में हो, कुछ डिनोमिनेटर में हो. सो द काइंड ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वेयर द सिंगल कंडीशन इज़, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन होती है, q नेवर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड p and q हैव any integer. P and Q have any integer. So this is basically the property of rational number, the basic concept of rational number. So rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p by q, where q never be equal to 0, or p and q हैव एनी इंटीजर. इट मीन्स p के पास भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, q के प्लेस पे भी कोई भी इंटीजर हो सकता है. इट मे बी पॉजिटिव इंटीजर और इट मे बी नेगेटिव, कोई बात नहीं है. इट मीन्स
P अपॉन Q के फॉर्मेट में जो भी नंबर होता है वो रैशनल होता है. सो वी कैन सी हियर दिस वन एज ए से सर यहाँ पे तो देयर आर ओनली न्यूमरेटर, देयर इज़ नो डिनोमिनेटर, बट देयर इज़ अ डिनोमिनेटर. जहाँ पर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं होता है वी शुड टेक वन. ओके, सो दिस मीन्स दिस वन वी कैन से दिस वन अपॉन वन, दिस टू वी कैन से दिस टू अपॉन वन, दिस थ्री वी कैन से दिस थ्री अपॉन वन, एंड सो ऑन. It means all natural numbers can be represented in the form of P by Q. इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसीलिए हम लोग सारे नेचुरल नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहते हैं. ओके, सो ये सारे नेचुरल नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. देन वी विल टेक वन. सिमिलरली होल नंबर में भी these are also rational numbers because they all have denominator 1. As similar as integers, they are also called rational number because they all have denominator as 1. Okay, spite of this, decimal numbers, decimal, I think we will have to write here. Okay, it will show you clear. Decimal numbers are basically rational numbers because we can convert decimal numbers into rational numbers. हम लोग डेसिमल नंबर को भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स डेसिमल नंबर भी रैशनल होता है. इट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर. ओके, सो डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें सो दे आर ऑफ टू काइंड. ओके, basically they can be of two type. The first terminating decimals, first one is terminating decimals. डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ओके. द सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. सो डेसिमल नंबर्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. तो चलो समझ लेते हैं कि डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मीन्स वो सारे के सारे डेसिमल जिन्हें हम लोग टर्मिनेट करता हुआ देखते हैं. जैसे वी कैन से 0.5. सो दिस इज़ अ डेसिमल नंबर, राइट. 0.5 is a decimal number and this is a terminating decimal number क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है. ओके, और वी कैन से 0.3 और वी कैन से 2.7 एंड सो ऑन. ओके, वी कैन से 3.456 457. सो ऑल दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं. तो यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ डेसिमल के बाद इतनी ही डिजिट्स आ रही हैं. इट मीन्स से टर्मिनेट कर रहा है. अगर हम कहें कि व्हेन वी सॉल्व 1/3, जब हम लोग 1/3 को सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल, then 0, then 3, then 9, 1, then 0, then 3, then 9, then 1, then 0, then 3, then 9, then 1 and so on. It means यहाँ पर जो डेसिमल आ रहा है 0.333 ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये एज इट इज़ आता ही जाएगा. एज सो ऑन हम डिवाइड करते चले जाएंगे, यहाँ पे 3 आता ही चला जाएगा. इट मीन्स ये जो 0.333 एंड सो ऑन है ये हमारा कैसा डेसिमल है. दिस इज़ आवर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ओके, सो दिस इज़ 0.3333 एंड सो ऑन. इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ओके, सो वी कैन राइट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 0.3 का बार. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है. सिमिलरली, ओके, सिमिलरली if we say
2.57777, this is also a नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, द सिंबल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इज आइदर इट टेक्स अ बार, आइदर दे हैव दिस टाइप ऑफ डैशेस. ओके, इट मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव टू कैटेगरी. ओके, वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव टू कैटेगरी. लुक एट हियर. सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव टू कैटेगरी. व्हाट इज दिस? दे हैव टू कैटेगरी. इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव टू कैटेगरी. फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड द सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो these two numbers are the examples of non terminating repeating. मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रहा है. रिपीटिंग मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट रिपीट कर रहा है. एज वी कैन सी हेयर, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 7 रिपीट कर रहा है. अगर इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट, इफ़ वी वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ बार, देन वी कैन राइट दिस 2.57 बार. Bar only takes 7 takes only bar. Okay, because only 7 is repeated here. Okay, so this is a non-terminating repeating. So this is a non-terminating repeating block. But as we told earlier, non-terminating have two category. First one is non-terminating repeating and the second one is non-terminating non-repeating. Okay, so non-terminating non-repeating. Second one is non-terminating non-repeating. As we can see here, मैंने इसको इस तरफ लिखा है just because of non-terminating non-repeating is a decimal but this is not a rational, this is a irrational. That's why मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है non-terminating non-repeating. इसको भी समझ लेते हैं. Those decimal numbers in which द डेट्स आर नॉन टर्मिनेटेड, मतलब डेट्स रिपीट करती चली जा रही है, टर्मिनेट नहीं कर रही है. टर्मिनेट मीन्स रुक जाना. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. इट मीन्स ये टर्मिनेट कर रही है, डेसिमल के बाद रुक रही हैं. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुकते ही नहीं है, चलते चले जाते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट या दो डेट पर्टिकुलर रिपीट करेगी. ठीक है, दैट्स वाई. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स ये ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है. इट मीन्स इट इज़ लाइक 7 8 1 रैंडम कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 and so on. So this is a kind of non-terminating non-repeating. डेट टर्मिनेट भी नहीं कर रही है, बढ़ती चली जा रही है और कोई फिक्स नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ non-terminating non-repeating. ओके, so if someone asks, sir, this is a kind of rational or irrational, so this is a irrational number. So why we call these are the rational numbers? So look at here, हम क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? मैंने यहाँ पहले बता दिया इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा है. बिकॉज इन तीनों को हम लोग इस p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली हम डेसिमल को भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, दिस बिकम्स 5/10, दिस बिकम्स 3/10, दिस बिकम्स 7/10, दिस बिकम, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, सो दिस बिकम 3 4 5 7 divide by 1000. It takes 30 because of 3 digits. So these all terminating decimals, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आता है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. और इसके बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं क्योंकि इनको भी हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज़ अ इरैशनल नंबर, क्योंकि ये डेसिमल के फॉर्म में, वो रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा. ओके, सो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पहला मैंने इरैशनल नंबर का एग्जांपल बता दिया. इरैशनल में पहली कैटेगरी में क्या आएगा?
इसमें पहली कैटेगरी में तो यही आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं 0.34521020010001। सो दीज आर ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 0 आया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया एंड सो ऑन, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नॉन रिपीटिंग, ओके। और if we have a square root of non-perfect square number, it means square root of 3, square root of 5, square root of 7, square root of 2, these are also the irrational numbers। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है तो वो भी क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो ये रैशनल है बिकॉज इट कैन कन्वर्ट इनटू 2, ओके। सो 2 तो रैशनल होता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 3 वी कांट सॉल्व। वाई वी कांट सॉल्व, क्यों ये सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसकी जगह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर के हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दीज आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। एंड स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। सो दिस इज़ बेसिकली द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स, ओके। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।